to welcome you all to the second edition of Miraksa. We are truly delighted to have you here to celebrate the vibrant culture through the beautiful art of dance and music. Miraksam, as the name suggests, meaning I dance. Music and dance are more than just performances. They carry the stories of our ancestors, the dreams of our people, and the timeless rhythms of our collective spirits. In every note played, in every moment made, there's a history, passion, and beauty of our tradition. We are incredibly fortunate to have such talented artists among us today who have worked tirelessly to bring this cultural experiment to life. Let us all celebrate not only their dedication but also the many ways in which the arts bring us closer. Thank you once again for joining us, and without further ado, let's join ourselves in magical world of dance and music. Thank you. Commencing any event, we take blessings from God and start the event by lighting the lamp. I would like to request our chief guest, Mr. Vineet Prakash, the HODs and the coordinators to please come up on stage for lighting the lamp. Mrs. R. Bunny, Mrs. S. Patrick, Mrs. L. M. Sadiq, Mrs. Bennett, please come up on stage and light the lamp. We, Team Miraksam at Lamartine Girls College, are truly delighted to welcome a distinguished individual, someone whose presence adds immense value to this event. We are privileged to have with us today our esteemed chief guest, Mr. Vineet Prakash, IAS Special Secretary, and Mr. Mukesh Kumar Meshram, who will be joining us shortly. Sir is a person of remarkable accomplishments whose contribution in the field of Indian culture have left a mark on all of us. Now, we would like to present a planter from our very own nursery, Arya Nini. Please accept as a token of gratitude, sir. हमारे विद्यालय के नृत्य विभाग के दूसरे संस्करण मिरक्सम कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसमें मंत्र मुक्त करने वाली नृत्य शैलियों का प्रस्तुतिकरण विभिन्न कलाकारों द्वारा किया जाएगा। हमारे देश की समृद्धि, संस्कृति और विरासत को नृत्य द्वारा दर्शाया जाएगा। आप सभी हमारे साथ इस आकर्षक अनुभव में सम्मिलित हों, जहां परंपरा का नवाचार से मिलन है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्माय नकराय ओम नमः शिवाय। हमारे कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति देने जा रही हैं शिवांगी बड़वाल, जो कक्षा 11 की छात्रा हैं। इस नृत्य के माध्यम से शिवांगी हमें भगवान शिव की अनंत शक्ति और उनके सशक्त रूप को नृत्य के द्वारा दर्शाएंगी।
त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय डिमिक 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 नमः बाजे मृदंग कहत दान दान धित्ता चुनुन 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 चुनु बाजे कुनुन कुनुन कुनु बाजत मंजीरा झम 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 झाज बजाओ ताभर नाचत गौरी शंकर शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय With Ganesh Prasad Mishra, from whom he received training in classical music. He is from Hariharpur Gharana. He is the recipient of various national awards and is trained in music forms such as thumris, bhajans, ghazals and many more. Dr. Anjani Kumar Mishra हरिहरपुर बनारस घराने से हैं जो 800 साल पुराना है। इस घराने ने देश के लिए कई प्रसिद्ध गायकों को जन्मा है। डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा बहुत कम आयु से ही पूर्वी गायकी परंपरा को कायम रखते हैं। वो संगीत रत्न, कला रत्न एवं संगीत नाटक अकादमी से कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आइए तालियों के बीच स्वागत करें डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिंदु सर सामने बैठे हैं और हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर सर हमारे बैठे हुए हैं। मैं सभी से इजाज़त लेते हुए और सारे प्यारे प्यारे बच्चों और सारे स्टाफ सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। धन्यवाद देता हूँ कीर्ति जी को कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। मुझे जितनी भी संख्या यहाँ दिखाई दे रही है सभी लोग मेरा साथ देंगे जब आपका साथ मुझे चाहिए होगा। अपने लिए एक बार जोरदार ताली लगाइए सभी लोग। और फिर थोड़ी सी लाइट जला दीजिए, बच्चे हमें दिख नहीं रहे हैं, हल्की लाइट जला दीजिए। यस, गुड। अब कंफर्टेबल हो गया मैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को मुझे देख करके। और कितने लोग गाना अच्छा गाते हैं हाथ उठाएंगे। जो गाना अच्छा गाता है वो हाथ उठाएगा। मतलब गिने चुने लोग अच्छा गाते हैं, बाकी सभी लोग अपने आप को खराब मान लिए कि हम खराब गाते हैं।
सारे लोग हाथ उठाइए, सभी लोग, सबको गाना है, मेरे साथ गाना है। ओके डन। आवाज ही नहीं आ रही है, क्या हुआ? अभी भी कम आवाज आ रही है। थैंक यू। थोड़ा सा बता दीजिए। मॉर्निंग राग है ये। मॉर्निंग राग में क्या होता है कि हम ईश्वर को जगाते हैं, हम प्रभु से बात करते हैं। जागो गोपाल नंद के लाल, हम प्रभु को जगा रहे हैं कि अब उठिए, सुबह हो गई है। ये बंदिश हमारी है, जो हमारी रचना है, जो हम लोग अभी आपके सामने भजन कर रहे हैं। द्वारन आए हैं सब बाल, सारे बाल गोपाल लोग आपको उठाने के लिए आ गए हैं। प्रभु आप जग जाइए, अब उठ जाइए। जागो गोपाल नंद के लाल, जागो गोपाल के लाल, गोपाल नंद के लाल, जागो गोपाल के लाल, द्वारन आए हैं सब बाल, द्वारन आए हैं सब बाल।
Nanda
तबला का साउंड बढ़ा दीजिए भैया। पदनिदा पदनिदा बनिदा बनिदा गगनिदा पमगा मनिदा पमगा मदा पमगा मदा मदा दा बनिदा दा नि 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 सा नि नि दा पमगा गगनिदा जय गुरु पाजा पदनिदा दा सारी दा बनी दा मगा मगा मरे दा सारे दा सारे रे रे सारे गा मा पा सा जा पदनी दा सानी दा कौन गाता है इसमें? मेरे साथ गाना है। पदनिदा इन लोगों ने हाथ उठाई थी ना कि अच्छा गाते हैं, उनको गाना है। पदनिदा बोलिए पदनिदा 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 संगीत में काकू होता है, काकू काकू भेद उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हर तरीके से बोलना है। गंधारी सभी का कॉन्फिडेंस देखना चाहिए मुझे। जो गा सकता है गाइए, और जो वहां शर्मा रही है तो यहाँ आइए मेरे पास। एक बिटिया है जो उसको मैं पहचान रहा हूँ, कहीं हमने देखा उसको। अभी हाथ उठा रही थी वो। ये डांस करती है मुझे लगता है। Mama ga ba ba ma da da ba ni ni da sa na ni ni da ni 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 sa da 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 ni ni ba da da ma ba ba ga ma ba de ga ga da ni ni ja go ma ke la le ja go ma हम जो सरगम कर रहे हैं सिज माय डॉटर कि आपके सामने उसका आकार करेगी। पदनिदा मा पदवा गा मा पा मा रे गा मा गा सा रे गा रे नि सा रे जा। अब हम आकार करेंगे, ये सरगम करेंगे।
अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे। कितने लोगों ने सुना है इसको? बस हाथ नीचे। अब कितने लोगों ने सुना है? अभी भी कभी लोगों ने सुना है? मेरी आवाज जा रही है अब तक? आयो रे अलबेला सजन आयो। हम लोग गाइए जरा एक बार गाइए सब लोग। अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो। गाइए। बच्चों के पास माइक है क्या एक्स्ट्रा? वहीं से गाइए। हॉल बिल्कुल कीप साइलेंट है, आप वहां से गाएंगे तो आवाज आएगा। अब नहीं गाएंगे तो मुझे आना पड़ेगा सिखाने के लिए यहाँ। अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे मन सुख पायो रे सुख पायो रे अलबेला सजन अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला
कितने लोग पसंद है इसको? इस गाने को आप लोग समझ में आ गया? गमा पदनी धनी पद पद गमा पदनी सनी सनी नि पद पद गमा पदनी ध पद पद गरे मर आने मिलो सजना सजना रे आने मिलो सजना सजना रे आने मिलो सजना सजना रे आने मिलो सजना रे आने मिलो सजना सजना रे आने मिलो सजना अखियों में ना आए निदिया अखियों में ना आए निदिया मोहे ना भाए काजल बिंदिया मोहे ना भाए काजल बिंदिया सोना पड़ा सर के लिए ही गा रहा हूं मैं। सर आपके लिए सुनना पड़ा था ये जगह। एक बार जोरदार ताली लोकेश मिश्राम सर के लिए। सोना पड़ा अंगना रे आने मिलो सजना सजना रे आने मिलो सजना सजना आने मिलो चंदा तारे आए चंदा तारे आए सारे आए सारे आए तुम्ही सगना सगना आए तुम्ही सगना सगना आए तुम्ही सगना सगना आने मिलो सजना सजना सर संगीत के बहुत ही मधुर श्रोता है
और बहुत लगाव है सर को संगीत से। और सर को लगभग 10-12 साल पहले से हम जान रहे हैं। जब भी हमारे यहाँ डीएम थे सर, मैं आजमगढ़ से हूँ, हरिहरपुर घराना। और सर ने संगीत को हमारे यहाँ बहुत बढ़ाया है। और आज के दिन है कि जो हमारे यहाँ जो संगीत का महाविद्यालय बन रहा है, सर आपके आशीर्वाद से ही बन रहा है। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। हमारे यहाँ आजमगढ़ में हरिहरपुर घराना में एक भाखंडे की तरह यूनिवर्सिटी बन रही है कि वहाँ के लोग, एक्चुअली पूरा गांव एक म्यूजिकल विलेज है। वो लगभग 70 घर के आसपास है। सारे लोग म्यूजिक का ही काम करते हैं। वहाँ बच्चा भी बोलता है, गाता है, रोता है तो म्यूजिक में ही रोता है। वहाँ की मिट्टी पूरी सुरीली है कि वहाँ सुबह से लेकर शाम रात पूरे 24 आवर्स आपको म्यूजिक सुनाई पड़ता है गांव में। सर जब वहाँ थे तो सर ने लोगों को समझिए कि इतनी बड़ी चीज़ें दी है। और वहाँ से सर को बहुत लगाव रहा है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सर हमारे समक्ष बैठे हुए हैं और इनका आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। और सर आप जब तक रहेंगे इस पद पे और पद पे नहीं भी रहेंगे, रिटायर होने के बाद भी आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोग को मिलता रहेगा। सर डीएम सर जब वो थे रविनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत सराहा था गाँव को। तो उसके बाद जब आप आए तो पूरा आपने उत्थान किया गाँव का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए रही है। और सर के लिए तारीफ में और क्या कह सकते हैं। सर हमारे बहुत ही संगीत को ऐसा, इनको डिपार्टमेंट भी ऐसा मिल गया कि जो संगीत को संवारने के लिए, ये हमारे लिए और बड़ी बात है। और थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं, चेंज करते हैं आप लोगों को। एक सूफी है, सब लोग गाएंगे मेरे साथ, ठीक है। छाप तिलक। पिया नैनन में जो पलक ढाक तो है ना मैं देखूंगा ना तो है देखूं दूर। काजर डारो किरकरा जो सुरमा ध्यान जा, जिन नैनन में बसे तो दूजा कौन सवार। Baby friend, जितनी भी आप लोगों ने बच्चों को संवार दिया, बहुत लहरार बच्चे हैं। छाती के समझी
साउंड बढ़ा दीजिए।
किसी बच्चों को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है किसी को? Good afternoon, sir. How do you choose a particular rag for the day? एक्चुअली मॉर्निंग टाइम था प्रेजेंटेशन के लिए, तो मॉर्निंग टाइम में मुझे लगा कि अहिर भैरव ज़्यादा बेटर है और थोड़ा सा पॉपुलर राग भी है, उसमें पॉपुलर गाना भी है जो आप सभी लोग मैक्सिमम लोग सुने होंगे, तो मुझे लगा कि ज़्यादा बेटर है इसको प्रेजेंट करने के लिए। और बेटर टाइम था, मॉर्निंग टाइम था, इसलिए हमने चूज़ किया। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग बहुत लयदार और बहुत सुरीले हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम जगह मिलते हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए प्लीज। इतना एक एक बीट एकदम लय में जा रहा है, कोई भी बिना बीट का नहीं है। मतलब ये आपके टीचर, आपके गुरु के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप बिल्कुल एकदम एक एक बच्चा लय में है। संगीत में स्वर और लय दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्वर मतलब हो गया सांस, लय मतलब हो गया आपकी धड़कन। जरा सा दौड़ के भाग के आते हो, आपकी धड़कन बढ़ जाती है और आपकी बीपी बढ़ जाती है। बीपी बढ़ती है ना, कई लोगों की बिना दवा के हमने बीपी ठीक की है, सिर्फ संगीत के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। जब आप संगीत में रम जाते हैं, एक ध्यान में रम जाते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें आपकी संतुलित हो जाती हैं। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है अपने बॉडी को स्थिर करने के लिए, अपने शरीर को बिल्कुल शांत करने के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईश्वर को देखने का एक सरल माध्यम, सरल रास्ता। हम जब स्वर लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम सिर्फ ईश्वर की तरफ देखते हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, हर जगह व्याप्त है। स्वर के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा स्वर कैसा लग रहा है, सही लगा कि नहीं लगा। वो हम क्या देखते हैं? सिर्फ ईश्वर को देखते हैं। संगीत आप लोग करेंगे और करते रहिएगा, अच्छा संगीत सुनिएगा, बहुत शोरगुल नहीं, जो हमारे मन को शांत करे, आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही सपोर्ट करेगा। वो जो धैर्य बना के अच्छा म्यूजिक करता है, अच्छा सुनता है, उसका माइंड बहुत शांत होता है। म्यूजिक सुनने वाला, सीखने वाला बच्चा 10 दिशाओं में सोचता है। हमारे साथ कितना काम हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा सिर्फ हम गा रहे हैं, हम गा नहीं रहे। हम एक बोलने का माध्यम है, हम संगीत से आपके को बोलने का माध्यम बना रहे हैं। स्वर को भी ध्यान दे रहे हैं, लय को भी ध्यान दे रहे हैं, खुद गा रहे हैं, गलती ना हो, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उस पर भी हमारा ध्यान है। इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कैसा साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, सारा कुछ एक साथ ध्यान देना पड़ रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम है ना। और इसको सीखने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो भी शुरुआत करता है, सीखता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लग करके लगता है, लेकिन वो जो भी सीखता है, जितना दिन टाइम देगा ना, वो बेटर सीखता है और अच्छा करता है। और आप लोग से भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करिएगा। थैंक यू सो मच। कोई और क्वेरीज? Good afternoon, sir. So my question to you is that what advice would you give to someone starting her journey in Indian classical music? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या ना कि हम लोग मोटिवेट कैसे होते हैं आपको पता है ना। जब हम कभी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमको उनसे इंस्पायर होकर के हम वो चीज़ करना चाहते हैं कि अरे इतने इनका नाम है, इतना ये चीज़ें इनको पास अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम भी मेहनत करके ऐसे आगे बढ़ेंगे। ऐसे हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग पद्म भूषण, पद्मश्री, बहुत सारे अवार्ड हमारे घर में है, परिवार में लगे। लगभग 15 लोग के पास कम से कम पद्म अवार्ड हमारे घर में। तो जब हम बचपन से जब छोटे थे, जब देखते थे घर में
कि चाचा जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं या दादाजी आए हैं, कोई भी जैसे आ रहा है रिलेटिव, उनको देख के लोग जैसे लूट पड़ते थे कि इतनी बड़ी उपलब्धि इनके पास है। वो इंस्पायर देख करके इंस्पायर होना, हमें लगता था कि क्यों ना हम भी म्यूजिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसमें अपना काम अपना नाम रोशन करेंगे, इसमें इस फील्ड में जाएंगे। वो इंस्पायर हमारे लिए काम किया कि जो आप लोगों के समक्ष हम बैठे हुए हैं, वो बचपन से हमारे लिए एक प्रेरणा थी, हमारे लिए वो चीज़ देखना सुनना। सर बैठे हुए हैं, इतना अच्छा श्रोता हैं सर हमारे, और मुझे अब तक सर मैंने गाना सुना नहीं, हो सकता आप अच्छा गाते भी हो तो कह नहीं सकते। सर के लिए एक बार जोरदार ताली लगाइए। और कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें सर को इनवाइट किया जाए और सर अपना समय ना दे, बहुत व्यस्त समय से भी निकाल कर सर समय देते हैं। तो ये संगीत बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो अपने आप को आकर्षित करती है, एक दूसरे को खींचती है। आज आप सभी लोग मुझे जानते हो, इसके पहले नहीं जानते थे, लेकिन अभी सभी लोग जानते हो मुझे। कभी भी मुझे कहीं देखोगे ना तो पहचान जाओगे, कह रहे ये तो वही है जो हमारे यहाँ गाने के लिए आए थे, परफॉर्म किए थे। ऐसा है ना, सही? हमारी क्या हो गई, एक पहचान बन गई। आपको भी ऐसे ही एक इंस्पायर होना है। आप किसी भी फील्ड में इंस्पायर होइए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप IAS बनिए, आप कुछ भी किसी भी फील्ड में जाइए, तो किसी न किसी से आदमी इंस्पायर होता है। वो इंस्पायरेशन मेरे अंदर आई थी बचपन से देखते देखते, और आज आपके सामने भी। थैंक यू। Good afternoon, sir. At what age did you start your journey of Sangeet? Please, I cannot see. Okay. इसको बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअली यूँ कह सकते हैं, बस एक नॉर्मल सी चीज कि मैंने गर्व से ही संगीत सीखा है। हमारी माँ खुद ही बहुत अच्छा गाती थी, हमारे नाना जी भी बहुत अच्छा गाते थे, बहुत बड़े कलाकार थे, और हमारे पिताजी भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। वो बैंक में सर्विस करते थे, उसके बाद भी म्यूजिक का ही ट्रेनिंग देते थे लोगों को। और हमारे दादाजी भी बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, पूरा बनारस घराना के फाउंडर पंडित भैर रामदास जी, इनके नाम से पूरा बनारस घराना जाना जाता है। और हमारे बड़े पिताजी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, जो भातखंडे के प्रिंसिपल रह चुके थे, उनके पास मैं रह करके सीखा और बचपन से तालीम मिली। कुछ नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, पहले म्यूजिक कर रहा है, ये डांट हमेशा पड़ती थी। पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई हटाओ, पहले म्यूजिक करो। आज का दौर बदल गया, आप हम इनको कहते हैं बेटा पढ़ाई कर लो पहले, बाद में म्यूजिक करना। लेकिन फिर भी इनके लिए भी वही प्रेरणा है जो हमारे लिए थी। ये जब से ये इन्होंने बोलना सीखा है हमारे साथ में, म्यूजिक से ही बोलना सीखा है। छोटी थी तो हमारी गोद में आके बैठती थी, हम तानपुरा बजा के जब रियाज करते थे, तानपुरे पे ऐसे सर रख के सुनते सुनते सो जाती थी उसी पे। वो तालीम मिला है बचपन से। तो जब बचपन से आदमी, आप जब काम करते हो, चीज में रम जाते हो, लग जाते हो ना, तो आप बहुत राइज करते हो, बहुत काम करते हो। आपकी एक छवि, एक चीजें आपकी बिल्कुल अलग दुनिया से दिखती है, नजर आती है। तो वो बचपन से काम करना बड़ा अच्छा लगा। ये सब चीज़ें घर में मिली विरासत में। ये धन्यवाद है माँ बाप का और गुरु का कि जो घर में ही हमें, उस घर में हम जन्म लिए। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में भी आकर के मुझे। थैंक यू। We Team Meraksam at Lamartine Girls College are truly delighted to welcome a distinguished individual, someone whose presence adds immense value to this event. We are privileged to have with us today our esteemed chief guest, Mr. Mukesh Kumar Meshram, IAS Principal Secretary of Tourism and Culture Department. Now we would like to present a planter from our very own nursery, Aryani, to Sir. Please accept as a token of our gratitude, sir. Remarks on your cultural fiesta, I would straight come to Me Raksam. So, what is the meaning of Me Raksam? मैं नाचूंगी, हाँ? Is it so?
सो आदमी क्यों नाचना चाहता है, कब नाचना चाहता है? पार्टी 1 एंड हाँ, अच्छा बता सकते हैं इंडिया में नाचने का सबसे ओल्ड एविडेंस कहाँ मिलता है? इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, देयर इज डांसिंग गर्ल, यू नो. So basically सिविलाइजेशन जब हमने माइंड से सोचना चालू किया तो सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है और सिविलाइजेशन के साथ में कल्चर स्टार्ट हो जाता है. बट वी हैव प्री हिस्टोरिक कल्चरल एलिमेंट्स आल्सो. सो दो तरीके से कल्चरल चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं. इट्स इंटेंजिबल कल्चर या इंटेंजिबल एलिमेंट्स एंड टेंजिबल. टेंजिबल यानी जो दिखते हैं. व्हाट इज कल्चर? बेसिकली कल्चर में, अच्छा एक बड़ी छोटी सी बात मैं बताता हूँ. क्लाइमेट के ऊपर बहुत बेस्ड है कल्चर. जहाँ की जैसी आबो हवा होती है, जहाँ की जैसे कंडीशन होती है, उसी हिसाब से कल्चर डेवलप हो जाता है. कल्चर के क्या पार्ट्स हैं? लैंग्वेज. और कोई बता सकता है क्या क्या है कल्चर में, क्या क्या आते हैं? डांस, अटायर, लिटरेचर, फूड, यस, आर्किटेक्चर, यस, मॉन्यूमेंट, पेंटिंग्स, स्केचिंग, ग्राफ, पेंटिंग, सब आ गए. चलो कंप्लीट. लेकिन कैसे आता है? हमारे यहाँ पे एक हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, एक कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, और हम लोग मेटाबॉलिज्म से पूरी बॉडी को ऑपरेट करते हैं और मेटाबॉलिज्म की वजह से एनर्जी हमारे अंदर आती है. हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में मेटाबॉलिज्म से जो हीट बनती है उसको हम बहुत ज़्यादा एग्जिट करना चाहते हैं. क्यों? और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में मेटाबॉलिज्म से जितनी हीट जनरेट होती है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं. कभी ठंड में देखा है आपको कपकपी लगती है ना? यू स्टार्ट शिवरिंग ड्यूरिंग कोल्ड क्लाइमेटिक जोन, और जहाँ पर भी आपका चिली वेदर आता है तो. और गर्मी वाले एरिया में आप नहीं वैसा करते हैं, ठीक है? तो जो ठंड वाले इलाके हैं वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा कम मुंह खोल करके बोली जाती है, ताकि आपके अंदर जो मेटाबॉलिज्म से आपने हीट जनरेट की है वो ज़्यादा बाहर आप एग्जिट न करें, न फेंकें. इसलिए कभी आप जाओ कश्मीर, कश्मीर में लैंग्वेज कैसी होगी उनकी? बुचुका करौन, सुछुवारे, वारिचुहज, बहुत छोटे छोटे उसमें वो करेगा, लिप्स कम खोलेगा. जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे हॉट क्लाइमेटिक जोन की तरफ, वो अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है ज़्यादा से ज़्यादा. यार बहुत मतलब गर्म लग रहा है, कैसे करेगा? यही भोजपुर की तरफ चले जाइए, ईस्टर्न यूपी में. वो केवल नाम नहीं, नाम के साथ में मुंह खुला रहे इसके लिए क्या बोलेगा? सुरेश अगर नाम है तो क्या बोलेगा? अरे ओ सुरेश, वाह बोला उसने, ताकि ज्यादा देर तक के मेटाबॉलिज्म से जो उसकी हीट बनी है वो निकले. और साउथ में चले जाइए, वो थोड़ा खींचेगा.
बोलेगा, है ना। नी बेर एंट, तो उसके जो लैंग्वेज में चीजें आएगी और नाम भी साथ में अम्मा, ठीक है, आई। इधर चले जाइए आप महाराष्ट्र में, नागपुर में बहुत गर्मी लगती है, 45 डिग्री प्लस चला जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे मिर्ची भी खूब खाता है आदमी, खूब पानी पिए। तो भोजन में भी क्लाइमेट का काफी असर होता है, लैंग्वेज में भी होता है, आपके पहनावे में भी होता है। बताइए, साउथ इंडिया में वाइट शर्ट, वाइट लुंगी, इंडिया में वाइट साड़ी, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए धोती, है ना, फहराते हुए चलता रहा, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में। आप अगर अरेबिक कंट्री में चले जाइए तो पूरा ऊपर से नीचे तक लबादा, चूड़ीदार, चूड़ीदार, ताकि जो है जो गर्म हवा है वो भी अंदर न जाने पाए, तो चूड़ीदार रहता है। लेकिन अपने यहाँ पे कुर्ता खुला रहेगा ताकि हवा अंदर घूमती रहे, अदरवाइज हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में वैसी दिक्कत होने लगेगी। सिमिलरली आपका डांस है, जो ठंड जहां लगती है वहां पे शिवरिंग इसलिए होती है क्योंकि आपके सेल्स, बॉडी सेल्स कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन तेजी से करने लगते हैं, तो आपके मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ाते हैं वो। अदरवाइज आदमी अगर शिवरिंग ना करे तो वास्तव में ठंडा हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इसलिए बॉडी ऑटोमेटिक नेचुरली शिवरिंग स्टार्ट करती है। तो ऐसे समय में वहां का डांस क्या होता है, बहुत जोर से हाथ पांव हिलाने वाला। आपने देखा है वहां के डांसेस, और वहां का म्यूजिक तेजी से ढुक, है ना, ऑर्केस्ट्रा वाला बहुत तेजी से वो म्यूजिक चलाएगा ताकि आपका डांस भी उसी तरीके का हो। ठंड है, ठंड में आपको एक्स्ट्रा हीट जनरेट करनी है इसीलिए। लेकिन हमारे यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में आराम से बैठ करके पहले वो आरोह आलाप के साथ, फिर आरोह अवरोह, और ये पूरे के पूरे राग जो हमारे यहाँ पे हमने बनाए हैं, 6 बेसिक राग क्लासिकल म्यूजिक में है, वोकल में। और आज की तारीख में थाउजेंड्स राग, रागिनियां, रागपुत्र, राग प्रपोत्र, इतने सारे आते चले गए, इतने ज़्यादा हैं। तो ये क्लासिकल म्यूजिक की एक खासियत है कि इंडियन कंडीशन में हम उसके साथ में माइंड को, बॉडी को और सोल को कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी जगह पे, बाकी क्लाइमेटिक कंडीशन में केवल बॉडी एक्चुअली एंजॉय करती है और थोड़ा माइंड, ठीक है। तो जो 3 बेसिक सिविलाइजेशंस जहाँ पे अलग अलग आर्ट फैकल्टीज डेवलप हुई है, ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन, वहाँ इंटेलेक्ट पे बहुत काम किया था उन्होंने, नॉलेज पे बहुत काम किया था, इसलिए उनका आर्किटेक्चर और सब कुछ बड़ा रिच है। सेकंड, वेस्टर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा चला, लेकिन इंडियन कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन बाकी सबके साथ स्पिरिचुअल पे काम करता है। इसलिए इंडियन कल्चर से कनेक्ट होना और इंडियन कल्चरल एलिमेंट्स के साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को हमारे अंदर डेवलप करता है। तो कभी भी जितने राग हैं, अगर आप सुनेंगे, मॉर्निंग राग होता है, सुबह अगर कोई सुने तो उसका फोकस बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, और इसके अलावा वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। स्ट्रेस बस्टिंग का काम करता है, स्ट्रेस नहीं होता है, ये इसकी बड़ी खासियत है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की। और इसको अब म्यूजिक थेरेपी में यूज़ किया जा रहा है। बहुत जब ये जो बता रहे थे, तो कहाँ से निकले हमारे राग? हमारे राग जो है सारे के सारे नेचर से निकले हैं,
जैसे नदियाँ चलती कल 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 करते हुए, वाटरफॉल एकदम से वो गिरता है, जो सी शोर है उसकी आवाज़ है, चिड़ियाएँ हैं उसकी आवाज़ें हैं, वो सारी की सारी आवाज़ों से हम लोगों ने अपने अपने राग निकाले, इसलिए इट्स नेचुरल। और बॉडी जो है नेचर के साथ में हमेशा उसकी सिंक्रोनाइज इजीली करती है, जितने नेचुरल आवाज़ें हैं उसके साथ में वो सिंक्रोनाइज कर लेती है। और इस वजह से आपके जितनी फैकल्टीज़ हैं वो नेचुरल, जिसको पंच महाभूत कहते हैं हम, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसके साथ में वो कनेक्ट हो जाती है। इसलिए इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, एंड देर आर सो मेनी रिसर्चेस, particularly recently Speak Make has conducted researches on this particular aspect, that the young generation, young students, they are under tremendous stress. कंपटीशन है जी, भाग दौड़ है, हर किसी को जो है माँ बाप कहते हैं ये बन जाओ, वो बन जाओ, यहाँ जाओ, ये कर लो, बेचारा उधर दौड़ रहा है। तो ऐसे में स्ट्रेस बहुत रहता है उसको। लेकिन अगर पर डे 10 to 15 मिनट्स अगर आप बांसुरी सुन सकते हो, फ्लूट हरिप्रसाद चौरसिया जी की, आप सरोद सुन सकते हो, अभी हमने बुलाया था अमजद अली खान साहब को, आप संतूर सुन सकते हो शिव कुमार शर्मा जी का, आप तबला सुन सकते हो जाकिर हुसैन साहब का, आप वोकलिस्ट को सुनिए जिनकी बहुत सारे। और आपको बता दें कि यूपी में बहुत सारे घराना है, जैसे हरिहरपुर घराना है, डांस का लखनऊ घराना है, कथक का बनारस घराना है, और वोकल सॉन्ग्स का हमारे यहाँ पे किराना घराना है। पंडित भीमसेन जोशी वो किराना घराने के हैं, बहुत सौ को नहीं पता, रहने वाले साउथ के, लेकिन उनकी पूरी तालीम, उनकी पूरी शिक्षा या उनका जो घराना है वो किराना घराना से, वो भी यूपी का है। तो आपको कल्चर की पकड़ होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, कौन से डांस फॉर्म्स होते हैं, कौन से सॉन्ग्स होते हैं, कौन से, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। तो आप अपने को कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करिए रागों से, कनेक्ट करिए क्लासिकल म्यूजिक से, आप ऑटोमेटिकली नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे। नेचर से कनेक्ट होंगे तो शार्पनेस आएगी, माइंड की शार्पनेस, मेमोरी पावर बढ़ेगी, और आपका स्ट्रेस लेवल ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। तो ये इसकी फ़ायदे हैं। तो मैं भी सुनता हूँ, मैं जब तैयारी कर रहा था तो उस समय मैं सॉन्ग्स ऑफ नेचर एल्बम था वो सुनता था। जब भी मौका मिलता है आज भी मैं सुनता हूँ। जब उठ जाता हूँ तो आप करना क्या है, अब तो आपके स्पॉटिफाई पे भी आ जाता है, आराम से ऑन करिए, लगाइए, चलते रहेगा। जब भी फ्री टाइम हो, कहीं यहाँ से घर जा रहे हैं तो आप ऑन कर लीजिए, सोते रहिए, कोई बात नहीं। घर की डिस्टेंस अगर 10 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, 10-15 मिनट्स में आप सुन लेंगे, है ना। एंड इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, दैट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय many researchers. So that is why I would earnestly request the young generation, and particularly youth, to get connected with our culture, rich heritage, and the elements of our Indian culture, which leads towards spirituality. So thank you very much for inviting me on this particular occasion. और आपको जब मौका मिले बिल्कुल नाचिएगा। आज ही नहीं कि मीर अक्सम है तो केवल मीर अक्सम के टाइम पे, घर जाइए जब मन करे नाचिए, उसमें क्या है। फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, स्ट्रेस बस्टिंग का काम भी होता है। अदरवाइज जो है दो काम आदमी बाद में ज़बरदस्ती उसको करना पड़ता है उम्र के साथ में। एक तो वो जुम्बा करता है वो घटाने के लिए वजन, और नहीं तो उसको कोई ना कोई नचवा देता है, और दूसरा करता है जबरदस्ती हंसता है वो। इसलिए जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले हंसना चाहिए। एक चाइनीज कहावत है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय 400 बार हंसता है, फिर 3.5 साल के भाव से उसकी हंसी कम होते जाती है। 3.5 साल के बाद उसको नर्सरी में दाखिल कर देते हैं, तो उसकी हंसी किस लेवल पे आ जाती है।
इसके बाद में 14 इयर्स में वो टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स झेलने लगता है, उसकी प्रॉब्लम 21 इयर्स, 3.5 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 21 इयर्स, अरे आप बालिग हो गए, एडल्ट हो गए हो, हैं, कैसे बिहेव करते हो, इस तरीके से रहते हो, तो और लोग चिल्लाते हो। 28 इयर्स, इतना पढ़ाई कर ली, अब नौकरी वोकरी लगी नहीं लगी, उसकी हंसी घटते जा रही है। 42 इयर्स में आते आते वो 0 लेवल पे चला जाता है, हंसना ही बंद हो जाता है उसका। और फिर 42 इयर्स के बाद में लोग उसको कहते हैं, बेटा हंस ले नहीं तो मर जाएगा। तो बाबा रामदेव का योग कराया जाता है उसको कहते हैं हास्यासन। बहुत सारे देखे होंगे, पार्क में बैठ करके 4-6 लोग बैठे हैं कहीं पे और हंस रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, मतलब समझ में नहीं आता है कि वो हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। तो जबरदस्ती क्यों हंसना, जब मौका मिले और जहां मौका मिले हंस लेना चाहिए। और दूसरा, तालियां बजा लेना चाहिए, ठीक है, तालियां इसलिए बजाना चाहिए, सब ठीक है ना आपको, यही है कल्चर, सबको रिस्पेक्ट करो, है ना, और हर चीज में इन्वॉल्व हो जाओ, हर एक के साथ एंजॉय करो, ये अपना कल्चर, ठीक है, सबको हम लोग मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज आवर कल्चर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your insights and valuable time. Surely we have learned a lot from you today. We are grateful that you took out your precious time from your busy schedule and graced our event with your esteemed presence. Thank you. He is a renowned and talented young Bharatanatyam artist. He has been trained traditionally under the able tutelage of Padma Bhushan Dr. Saroja Vaidyanathan and Mrs. Rama Vaidyanathan. He has been felicitated by awards like Nritya Shiromani, Nritya Samrat, Natya Praveen, Nritya Mayoram and many more. Now, Mr. Amrit Sinha along with his students Radha Mishra, Prakhyati Srivastav and Shambhavi will take up the stage. Please welcome them with a round of applause. पंचभूतनाथने पृथ्वीस्वरूपने एकामेश्वरने नमो पंचभूतनाथने जलधिस्वरूपने जम्बूपते नमः
जटाटवी गजज्वल प्रभापावितस्थले गलेवलं गजम्बुतं भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डम निनादवड्डमर्भयं चकारचण्डताण्डवं तरोतु न शिवं शिवं चकारचण्डताण्डवं तरोतु न शिवं शिवं तरोतु न शिवं शिवं तरोतु न शिवं शिवं तत्तडिङ्गु तकतडिङ्गु डिङ्गु 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 त्रिगदो तत्तडिङ्गु नं तडिङ्गु डिङ्गु त्रिगदो डिङ्गु त्रिगदो जटाकटाक संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलरि चिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाटपट्ट पावके किशोरचन्द्रशेखरि प्रति प्रतिक्षणं मम तज्जं तटक तजं 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 तत्तडदो तत्तजं तटक तजं तडदो 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 जटाकटाक संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलरि चिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाटपट पावके किशोरचन्द्रशेखरि प्रति प्रतिक्षणं मम प्रति प्रतिक्षणं मम प्रति प्रतिक्षणं मम तक्किट्ट तज्जनु तद्दिम्नि त्रिडदो तक्किट्ट त्रिडदों तज्जनु त्रिडदो त्वं तक्किट्ट तक्किट्ट त्रिडदो तक्किट्ट त्रिडदों तज्जनु त्रिडदो जय वय रवि रम रम शिजं गम श्वस द्विनिक्रमक्रमस्फुरत्करालभावहव्यव दिमित् 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 ध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव 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 Good morning, everyone. Good morning, sir. That seems that you all are awake. Chalo. Good afternoon, everyone. I think all are now little bit warmed up while watching my performance. I think so. Can I get some clappings from you? Thank you. Thank you. So it's a great honor being present in front of all of you. Thank you to the management. Thank you to the all respected wonderful teachers of the institution. Thank you, Ma'am Kirti, for inviting me. And yes, now I'm keeping it like, let's have some session with you all. Why, being a male dancer, I chosen this classical art form. You know, I wasn't proper, completed my education, but I can't say that I completed. कहते हैं कि like पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है, वैसे ही I wanted to say डांस का कभी अंत नहीं होता है. Nowadays, dance is not treated to be like a extracurricular activity. Dance is like a subject, I can say that now. We have such a deemed universities all over India abroad. So I think dance is actually a subject. That's what written in our Natya Shastra. Male dancers को हर कोई tease भी कर देता है. सबसे basic minute points I'm telling, sharing my opinion, and we all going to dance together. So देखा जाए हमारे हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू ट्रेडिशंस में डांस कैसे बन के आए. कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग अपने ऊपर वाले को प्रे करके, उस गॉड को, उस भगवान को, उस अल्लाह को, वी ऑलवेज प्रे एंड स्टार्ट आवर डांस प्रैक्टिस. वी कम टू स्कूल,
We start our session while doing the morning assembly, wishing our teachers a very good morning. And after school gets over, we say, bye-bye, thank you, ma'am, for everything. So in that case, we start our dance while doing the namaskar. You know how many types of classical dances are there in India? Anybody can answer fast. No, I'm saying, what are the number of classical dances? 8. Anybody can tell the name or everyone? First, Bharatnatyam is from which part? Tamil Nadu, very good. Second, Kathak from? Okay, next. Odissi is from? Odisha. Okay. From? Kathakali is from Karnataka? Yes, Kerala. Sixth. Kuchipudi is from? Andhra Pradesh. Okay, next. Bihu is a folk dance, not a classical dance. Manipuri, correct, is from Manipur. Good. And the last one? Mohiniyattam. Last or second last? Mohiniyattam is good from Kerala, and the one is left, which is not being very much practiced or familiar, like that dance form is from Assam only. That is Satriya. Sattriya. Okay? Satriya is also from Assam. You can Google it afterwards. So every dance form has different namaskars also. Like in Bharatnatyam, we always do like on annual concerts or wherever your dance teachers are giving you training. Kathak may we always do some like this way. The hand mudras are very soft and light. Okay? So whatever the mudra we are making it, Kathak may we keep it like this way. Bharatnatyam may we do a more stiffness. Like this way has a Odissi, the Tribhang of your hip and belly gestures. The Odissi are actually combined from the Krishna and the Shiva. When they both combine with each other, that is called a Mohini avatar. Okay? So that's why. And Odissi we are using in our very own Western dance forms also, like a belly and all that. So I do namaskar. You know, in this Bharatnatyam, because I'm from Bharatnatyam, so I just wanted to tell you the meaning of namaskar, why we do this namaskar. Raise our body, touch the floor. In this one namaskar, we do 4 namaskar within one namaskar. We pay tribute to the 4 people. You know how? We pray to Mother Earth and feel sorry also. Why? Because हम अपना पैर पटक के आपके ऊपर ही मैं पैर पटक रहा हूँ. So मुझे माफ करिए. But at the same time, I need your blessings also to give this art form inherent in my body, so that I can learn it very seriously, and something can get in my body also. After praying, we do this full hand namaskar to our God, जो जिसको मानता है. So as we say now, in all religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai nahi hai. This is something different, caste and creed. This is a dancer's caste. Nothing, no barriers, no age bar. 5 साल का बच्चा भी सीखेगा या 50-60 years old दादी और नानी और दादी पापा, anybody can learn and dance. And nowadays, in every field we have a dance. Yeah. But the studies are most important. Okay? So we do the second namaskar to our God. The third to our guru, to our teachers, in front of forehead. And the chest, in front of our chest. We pay namaskar to you all. To the lovely audience, to the viewers, to the rasikas, we say a special word. So I hope you all have been knowing the meaning of namaskar. Now have you listened about this half body of Shiva and half body of Parvati? Okay. And what we say? Then Ardhanarishwar. What is Ardhanarishwar? Half is, the right side is the Shiva
the left half is the better half, Parvati. And when they both combine with each other, they make that figure of Ardhanarishwar. That is the best example of our universal parents, mother and a father. एक के बिना दूसरा अधूरा है. Like पुरुष and प्रकृति. अगर एक किसी का मरण है, किसी को मर गया, तो उसी टाइम किसी का बर्थ होना भी बहुत जरूरी है. And what is the father role? The first half of Shiva, it's a destruction. And Parvati, the second half, is the creation. Okay? So what is all this nature's beauty when we go abroad and all whatever? Garden mein jate hain, so but we always see the plants, the nature talking to each other. We feel happy, isn't it? So all this is nature, like the birds, the flowers and all, the rivers, the droplets, the mountain and the trees, how we can show the trees and all. So I'm going to show Ardhanarishwar Ashtakam. You would like to see? Yes, sir. So let's see how I'm going to depict the male aspect. From the right side, the left side will be the Parvati. Okay? So Shiva is all vigorous, but at the same time, he is the father figure. At the same time, the Ma Parvati, the one who wears the champa flowers in her hair. And what the Shiva is like, matted hairs and all that. He puts ashes. And what Parvati? She puts a kurukum. The Shiva wearing the snakes. And what Parvati is wearing? That all anklets, the bracelets. He wears the cloud and the full sky as his garment. And Parvati wears that tushala, like a shawl. So all such things are being collaborated together and they mix and they build up as a one. That is father and the mother uniting each other, Ardhanarishwara. So let's see the dance of destruction and creation in front of you.
Good afternoon, everyone. I hope you all enjoyed the performances. Can we have a round of applause for all the artists? Thank you. It is my privilege to be standing here today in front of such esteemed gathering. I will be ever so grateful to Mrs. A. Das, our principal, for providing me this platform to promote Indian culture. I'm also thankful to all the chief guests who had come by because they were so busy, so they came a little late. So thanks to them also. I would like to thank all the HODs, Mrs. Sadek, thank you so much for giving me all the support. Mrs. Patrick, thank you so much. Mrs. R. Bunny, thank you so much, ma'am. Ms. Brown, thank you so much. Mrs. Bennett, thank you so much for being here and gracing the occasion. Your presence has really been so, it's kind of you to be here. I'm really grateful, thank you. I would also like to thank the teachers who have been a support to us, but first and foremost to the artist, Mr. Amrit Sinha. Thank you so much for this lovely performance. It was really awesome. Everybody was clapping so much for you. The first time I watched the performance was really awesome. Thank you, Dr. Anjali Kumar Mishra, sir. It's been an honor for me to have you here and with your entire team. Thank you, teachers who have been a support to me. It's never a one-man show. It's a team that supports the events like this. So I would like to thank Mrs. Khan, Mrs. F. Khan, Mrs. P. Doltani, Mrs. T. Lugan, Miss D. Bajpai, Miss F. Hassan, Mrs. Khosla, Mrs. B. Hassan, all the estate managers, the kitchen staff, the Aranyani staff, and the support staff. I would also like to thank all the girls who have been there with me for the last 1 month. They have been in and out of a lot of problems, but they have supported till the end. Thank you, Abhishek sir. We know you had some issues over there with the technical snag, but we really pulled off well till the end. Thank you so much, everyone. And the girls who have worked through hard, I would just like to call them up on stage. Srishti Mishra, Zainab Abbas, Prakriti Agrawal, Shivangi Bandal, Riya Shukla, Mishti Sinha, Sanskriti Mishra, Shraddha Sharma, Ishleen Kaur, Trishanka Pandey, Gunjit Sachdeva, and
Shivantika Sai. Please give them a round of applause. We would now like to call upon Dr. Okay, after this photograph session. Children. May I please have one photograph with them? Dr. Anjali Kumar Mishra up on stage. And please could we please have a token of appreciation for him? Could I please call all his accompanists also on stage, please, everyone? Shubham sir, Prakash sir, Asta. All the girls and the artists, please. Everyone up on stage, please. Quickly, because we're running short of time. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं नामेटियर गर्ल्स कॉलेज में यानी कि LMGC में और आपको बता दें कि यहां पर कल्चरल फेस्टा का आयोजन किया गया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बच्चे काम कर रहे हैं, अपनी धरोहर को संभाल रहे हैं, उसी को एक बार फिर से जागृत करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर कल्चरल फेस्टा का आयोजन किया गया है। तमाम यहाँ पर आर्टिस्ट आए हुए हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से बच्चों को एक मैसेज देंगे कि आप कहीं पे भी जाइए लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचा के रखना है क्योंकि ये हमारी सभ्यता है। तो चलिए ले चलते हैं पूरे इस इवेंट में और दिखाते हैं कि क्या कुछ इस बार नया हो रहा है और आए हुए आर्टिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं। बढ़िया है, हमेशा जब भी मौका मिले यंग लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो जो पीढ़ी है वो हमारा असेट है, आगे की पूंजी वही है। अगर वो अच्छे वैल्यूज़ के साथ में, अच्छे कल्चर के साथ में, अच्छे कल्चरल एलिमेंट्स के साथ में हमारे कल्चर को समझते हुए वो अपनी लाइफ आगे ग्रो करते हैं तो नेचुरली हम एक अच्छा फ्यूचर भी देखते हैं उनमें। तो इसलिए मुझे जब मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। सर, बच्चों को क्या मैसेज देके जा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो नेचर और कल्चर इन दोनों को लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए, है ना। और नेचर से भी सीखने मिलता है और कल्चर से भी सीखने मिलता है। दोनों को अगर हमने अपने लाइफ में सम्मिलित कर लिया, अपने बिहेवियर में, अपने पूरे के पूरे स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में, तो वो बहुत बड़ी रिचनेस होगी हमारी। बिल्कुल सर, लेकिन आज यहाँ पर स्टेज में आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि बच्चे हंसे, डांस करें, एंजॉय करें, लेकिन आजकल की पढ़ाई के टाइम में माता पिता भी बहुत बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर IAS PCS बनना है। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो क्या उसी में भेजना चाहिए? अब दौर बदल रहा है और धीरे धीरे पेरेंट्स भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि बच्चों को जो बनना है वो बनने देना चाहिए और ये उनका राइट भी है, ठीक है। क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट है वो जो बनना चाहता है उससे अलावा अगर हम दाएं बाएं उसको करते हैं तो फिर वो अपना 100% जो एक्सेलेंस है वो निकल के नहीं आता है। यहाँ के बच्चे बहुत ही सुरीले और बहुत ही लयदार हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे परफॉर्म करके कि यहाँ पे एक बीट पे बच्चे क्लैप कर रहे थे और बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बच्चों को म्यूज़िक बहुत ही पसंद है और बड़ा अच्छे से बच्चों ने सुना, बिल्कुल कीप साइलेंट बच्चे थे।
और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे परफॉर्म करके यहाँ पे इस चीज़ों को सुना करके। बिल्कुल, एक सवाल है हमारा सर आपसे कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ज़्यादातर कहते हैं, एक तो पढ़ाई के लिए इतना प्रेशराइज करते हैं कि आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, संगीत की दुनिया में आपको नहीं जाना है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे और बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैक्सिमम जो पेरेंट्स जागरूक है ना, आज को समाज को देख रहा है, वो ज़रूर बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहा है। इस समय में मतलब बहुत ज़्यादा इस समय में चल रहा है कि हर बच्चा सीखना चाह रहा है, हर पेरेंट्स चाह रहा है कि हमारा बच्चा कोई करिकुलम में जाए, और एक्स्ट्रा मतलब काफ़ी पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं और बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। तो वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये नहीं कर सकते बहुत सारे पेरेंट्स कर, लेकिन कुछ लोगों को जिनको म्यूज़िक के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है या वो समझते नहीं है कि म्यूज़िक है क्या। एक्चुअली क्या कि जब तक वो लोगों को देखते नहीं है ना, समझते नहीं, तब तक किसी चीज़ के बारे में लोग जानते नहीं हैं। लेकिन मैक्सिमम इस समय में जो भी लोग हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस है और जो स्ट्रेस को बाहर करना है तो म्यूज़िक से या किसी भी आर्ट से जुड़ना पड़ेगा। बच्चा इतना गलत काम में जाता है, सुसाइड करता है, सब कुछ करता है, वो क्यों कर रहा है? पेरेंट्स की वजह से कर रहा है। पेरेंट्स उसके ऊपर थोप देते हैं, अपनी जिम्मेदारी थोप देते हैं, बेटा हम नहीं बन पाए, तुमको बनना है। क्यों बनना है? वो उसको बनने दीजिए ना, जो अपना वो काम कर रहा है उसको करने दीजिए। उसके भाग्य में क्या है, उसके कर्म में क्या है, उसका क्या मन कर रहा है वो करने दीजिए। तो पेरेंट्स की थोड़ी सी लापरवाही है यहाँ। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे थोड़ा सा खुश रहें। जैसे अभी मुकेश सर बोले कि हंसना चाहिए, तो हंसना चाहिए ही चाहिए। आप कहीं भी रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, तो आपको स्ट्रेस कभी नहीं होगा, ना स्ट्रेस होगा ना कभी आप गलत काम करेंगे। तो ये तो सारे पेरेंट्स के लिए मैं बोलूँगा कि बच्चों को किसी न किसी आर्ट से ज़रूर जोड़े। हम नहीं कहेंगे कि म्यूज़िक से जोड़े या किसी चीज़ से, लेकिन वो ड्राइंग करे, वो कोई गेम में जाए, मतलब अपना स्ट्रेस बिल्कुल उसको आउट करना है अपने माइंड से, तभी वो अच्छा कर सकता है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे। बच्चों को अच्छे लेवल का संगीत सुनने का और डांस देखने का अवसर मिला, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का। बस यही मेरा ध्येय था, तो मुझे लगा मैंने ये इस ध्येय में मैं कामयाब हुई हूँ। बिल्कुल, बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? बच्चों के लिए मैसेज है कि अपने जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसको अपनाएं और वेस्टर्न के पीछे इतना नहीं भागें, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है सबसे पुरानी है और सबसे ज़्यादा प्योर है, तो प्योरिटी की तरफ जाएं। बिल्कुल, लेकिन मैम आज भी एक सवाल उठता है कि आजकल के पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि आपको बढ़ के पढ़ना है, आईएएस पीसीएस डॉक्टर बनना है, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं करनी है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो उन पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है, अगर किसी में कोई टैलेंट है तो उसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड होता है, तो हम गॉड से क्यों फाइट करें। तो टैलेंट को हमें बढ़ाना चाहिए और पढ़ाई, आई थिंक ये जो म्यूज़िक है ये सपोर्ट करती है। कभी कभी आपने देखा ही होगा कि कोविड था तो हमें बहुत चीज़ों का सपोर्ट मिला। तो म्यूज़िक जो है इट्स अ थेरेपी, ये आपके सोल को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके माइंड को, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। पढ़ाई आपका माइंड है और म्यूज़िक इज़ योर सोल एंड योर हार्ट, तो आई थिंक उसका बैलेंस बनाती है। तो हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, किसी को कम करके कोई चीज़ ऊपर नहीं उठती है। मैम आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, जब भी सैड होते हैं वो स्टेटस लगाते हैं ताकि दूसरा कोई देखे और फील करे, लेकिन वो दूसरों से अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या लगता है आपको कि अगर इस फील्ड में आते हैं तो भी स्ट्रेस अगर कम हो सकता है? बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहेगा इस फील्ड में आएंगे तो, क्योंकि जब हम डांस करते हैं या जब हम कोई भी अपना संगीत का जो भी म्यूज़िक से रिलेटेड फॉलो करते हैं, उस वक्त हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई चीज़ म्यूज़िक दे सकती है कि आप अपने आप को भी भूल जाए जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं या अपनी आर्ट की तरफ है, क्योंकि तब जब आप अपने आप को भूल जाएंगे तो आप स्ट्रेस को कहाँ याद रख पाएंगे। बच्चों को क्या कहेंगे आपकी? वो बिल्कुल एंजॉय करें एंड म्यूज़िक को फॉलो करें, वो आपको बहुत बहुत खुशी देगा, जो खुशी आपको कभी कहीं नहीं मिल सकती। तो आपने देखा कि जितने भी लोगों से मैंने बात की, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि ये हमारी संस्कृति है, इसे हमें लोगों को पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है, ताकि जो भी कहीं पे भी रहे लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति को साथ साथ लेके चले। और हमारा कल्चर, हमारी जो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ये हमारी धरोहर है। हमें बहुत ही खुशियाँ मिलती हैं ये सारे ऐसे इवेंटों में आकर के। विराजे के साथ, आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।